آج جو یہاں پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے، اشفاق جبار ایکس لیجسلیچر جس کی اپنی پارٹی ہے، یہ اپنی پارٹی کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اشفاق جبار اس وقت کرتے ہیں۔ جی آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، اور جہاں تک آج کے پریس کانفرنس کا تعلق ہے، جناب الطاف بخاری صاحب نے ہمیں ہماری پارٹی کو ریکویسٹ کیا اور کہ ہمیں جموں کشمیر کے وسیع تر مفاد میں یہ لے کے کہ یہاں کا ووٹ کا زیادہ بٹوارا نہ ہو، اور جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں یا جو پیچھے کچھ ہمارے جموں کشمیر میں جو ایک ہمارے ایشوز رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، اور ایک کینڈیڈیٹ کوئی جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بھی خود بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا جو میری پارٹی نے مجھے کھڑا کیا تھا، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں اگر ہم سارے ووٹ کو بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس صورتحال میں ایسا کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام کو ایکسپیکٹیشنز ہے آج کی ڈیٹ میں الطاف بخاری صاحب پہ یا ہماری جماعت پہ، وہ شاید فلفل نہیں ہو پاتا۔ کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد، اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے بعد، کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہمارے کولیگ بھی ہے جناب اشرف میر صاحب، اور ان کو ہم اپنا بھرپور تعاون دیں گے، چاہے وہ ضلع گاندربل سے ہوگا، سری نگر سے ہوگا، بڈگام سے ہوگا، پلوامہ سے ہوگا، چوپیاں سے ہوگا، جتنا بھی ہمارا کاڈر ہے، انشاءاللہ الرحمن ایک ایک ووٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اشرف میر صاحب کی پارٹی ہے، جو یہ ہمارے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے، انشاءاللہ الرحمن اب ان کو ہم کامیاب کریں گے۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کیا تھا۔ اور جو غلام حسن میر صاحب ہے، یہ میرے والد محترم کے بڑے کولیگ رہے ہیں، ان کا ہمیں بےحد احترام ہے، اور ان کی جو سیاسی ایک نظریہ ہے، ان کی بصیرت ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم فائدہ لے لیں گے، تاکہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ الرحمن وہ کامیاب ہو۔ اور جتنے بھی طاقتیں اس وقت جنہوں نے جموں کشمیر میں 70 سالوں سے ہمیں روندا، ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنج ہیں جو ہمیں جوائنٹلی دلی میں جو بھی سرکار آئے، وزیر اعظم صاحب کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے جوانوں کی رہائی ہے جو قیدوں میں ابھی ہے، چاہے وہ ویریفیکیشن کو لے کے جو معاملات ہیں جو سی آئی ڈی میں ان کے چلتے ہیں، چاہے وہ جو روزگار کے معاملے ہیں جو اس وقت ہمارے جوان اس وقت کافی مشکلات میں ہے، تو ہمیں دلی کو کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کرنا ہے ان چیزوں کے لیے۔ روزگار کے معاملے، جیسے کہ پاور کرائسس ہے ہمارے جموں کشمیر میں، اس کے لیے ہمیں پیکیجز کی ضرورت ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایک ریلیشن رکھنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، تاکہ یہ معاملے حل ہو جائے، اور آنے والے وقت میں ہم جوائنٹلی ایک ٹیم ورک میں ہم چلے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے چینلوں کے مادھیم سے اپنے عوام کو کہ ہم اپنے لوگوں کو کشمیری عوام کا جو آواز ہے وہ ہم انشاءاللہ الرحمن آگے رکھیں گے، اور جو کشمیر کی ڈگنیٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم دوبالا کریں گے، جیسے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم جوائنٹلی ایفرٹس کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چناؤ سے پہلے یا اس کے بعد میں ہمارا اسٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور ہو جائے، یہاں لوگوں کے اپنے حقوق بحال ہو، ہمارے بچوں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائے۔ اس لیے ہم نے وسیع تر مفاد میں اپنے جو ہمارے پارٹی کے بھی جذبات تھے ان کو سائڈ میں رکھ کے ہم نے جو عوام کے لیے جو آج یہاں پہ ایک ہاتھ ملایا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان طاقتوں کو جنہوں نے آج تک 50 سال ہمیں سبز باغ دکھائے، کبھی اٹانومی کے نام پہ لوٹا، کبھی سیلف رول کے نام پہ لوٹا، کبھی ہمیں
महाजरा शुमारी के नाम पे लूटा। तो तरह तरह के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज वो कह रहे हैं। आज हमारे जो हरीफ है, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर साहब, उसका आज उन्होंने शिवसेना के साथ अपना हाथ मिलाया। अगर देखा जाए, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद में बहुत सारे जो उस वक्त कत्लेआम हुआ शिवसेना के साथ ही था। तो अब वो ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये तो बहुत पुरानी हो गई और हमें पूरा पता, ये फिर हमें इल्जामात लगाएंगे। लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं, ना हम उससे पीछे हटने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को सोचना है। हमें और यहाँ शहीद मकबरे नहीं बनाने हैं, हमें माओं को विधवा नहीं करना है, बहनों को विधवा नहीं करना है। क्योंकि मैं खुद एक मिलिटेंसी का सताया हुआ हूँ। जब मेरे वालिद को शहीद किया गया, मैं महज 14 साल का बच्चा था। तो मैंने खुद देखा है, जिस घर में कोई घर का चिराग बुझ जाता है वहाँ क्या हालत होती है। इनके बच्चे तो लंदन में पले बड़े हैं, इनको नहीं पता ये उठा कल को अपना ब्रीफ केस उठा के फिर अपना रास्ता लंदन की तरफ या कहीं और जाएंगे। लेकिन हमें जीना मरना इन्हीं कश्मीरियों के साथ है, अपने अवाम के साथ है। आप देख रहे हैं जो मामलात है, इंशाल्लाह मैंने पहले ही कहा चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा, हमारी नीयत में कोई छोट नहीं है, हमारी नीयत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम चाहेंगे कि यहाँ के अवाम को, कल एक मैं देख रहा था, हमारा कहीं स्कूल में इनॉग्रेशन था, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब मेरे साथ थे। वो कह रहे थे कि 10 लाख बच्चे हैं जो इस वक्त ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है। तो कहाँ हम जा रहे हैं, किसकी तरफ, क्या हम कर रहे हैं? तो आज कौम को भी सोचना है, सही और गलत में फर्क करनी है। तो उन जज्बाती लोगों को हमें बोलना है जिन्होंने 370 को खुद अपने हाथों से दफन किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है। वो अदालत के बजाय, जो उन्होंने जुडिशरी से बजाय, अगर वो अवामी अदालत में जाते, शायद हमारा केस आज जिंदा होता। लेकिन हमने भी उस वक्त कोशिशें की कि ऐसा एक मामला चले, जैसे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, 900 किसान मर गए, 14 महीनों सड़कों पे बैठे, आखिरकार वक्त की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो हमारे लोगों ने क्यों यू टर्न लिया? बहुत सारी चीजें हैं। कल तक उमर अब्दुल्ला, महबूबा जी कहती थी कि जब तक 370 रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज वो दिल्ली का रास्ता कैसे उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर छोड़ के वो कैसे अब दिल्ली जाने चाहते हैं? इसका मतलब है यहाँ उनके लोगों ने उनको रिजेक्ट किया और वो यहाँ की सियासत अब छोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को खुदा के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको जो आनी चाहिए मीडिया में लोगों के सामने। तो एक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट खुद कैसे भाग गया और अपना घर छोड़ के दूसरे घर में कैसे गया। तो एक इन्वेडर जैसे वो क्या कहते हैं उसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो चलते थे मामलात, आज वही हालत इन जमातों की है। तो वो उनका अंदर का मामला, लेकिन हमें आवाम को बेदार करना है और इसलिए हम इंशाल्लाह जी जान से कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे और इंशाल्लाह रहमान मोहम्मद अशरफ मीर साहब को कामयाब करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजेंगे और पूरी ताकत के साथ हम इन फोर्सों का मुकाबला करेंगे। इस्माइल साहब, एलैबोरेट आपने जो कहा है, उमर साहब ने जो हाथ मिलाया शिवसेना, हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, शिवसेना की पार्टी, मैंने कल भी वो पोस्टर देखे, एरो, तीर कमान और हल का निशान साथ साथ है सब नॉर्थ कश्मीर में, एक दूसरे के साथ उन्होंने अलायंस किया है। बीजेपी तो कल आई, शिवसेना तो काफी पुरानी पार्टी है और जम्मू कश्मीर के अवाम बाखूबी वाकिफ है उन ताकतों से, उन लोगों से, और जिन्होंने हमारे बाबरी मस्जिद को शहीद करने में उनके कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना हाथ मिलाया। तो लोगों को इस चीज का जवाब देना चाहिए। अगर वो बाकियों को मोर्द निशाना बनाते हैं तो खुद कहाँ पे वो खड़े हैं आज के दिन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया है कि ये अलायंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। और यू सेइंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, खौफजदा तो उमर अब्दुल्ला खुद है जो सेंट्रल कश्मीर से भाग के नॉर्थ कश्मीर में चला गया। अगर उसमें दम होता तो अपने घर से लड़ता, सोनवार गुपकार तो उनका अपना घर था, तो वो क्यों नॉर्थ कश्मीर में रूहुल्लाह साहब के वोट, रूहुल्लाह साहब को तो बली का बकरा इन्होंने बना दिया, जो उनके अपने वोट्स थे वो तो उधर नॉर्थ में उमर अब्दुल्ला लेके भाग गया। तो उमर साहब खुद पहले उस चीज को डिफाइन करे ना, वो सेंट्रल कश्मीर
डर की वजह से भाग गया, या वो अब जम्मू कश्मीर को जो उन्होंने अलविदा अब कह दिया, वो दिल्ली में अपने आखिरी के दिन गुजारना चाहते हैं, तो उस चीज की भी वजाहत उनसे लीजिए ना। हम तो यही है, हम तो कोई भागे नहीं, हम तो इंशाअल्लाह रहमान पूरे लोगों के शाना बशाना रहेंगे, चाहे कैसे भी हालात हो, क्या भी हो, हम वो लोगों के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह जीना मरना हमें यहाँ ही है अपने कश्मीर में। उमर साहब क्यों खुद अलायंसेस में हैं, तो दूसरों की अलायंसेस क्यों उसको खटकती है? और वो क्यों नहीं तनहा इलेक्शन लड़ रहा है? वो क्यों सीपीआईएम का सपोर्ट हासिल कर रहा है? वो क्यों कांग्रेस का सपोर्ट हासिल कर रहा है? वो क्यों शिवसेना का सपोर्ट हासिल कर रहा है? अगर दूसरी जमातें मिल जाए वो खौफजदा होता है। उनका गठजोड़ भले भले, दूसरों का गठजोड़ दुश्मनी। और इंडिया अलायंस में ये भी मैं पूछना चाहता हूं आपकी माध्यम से, जो ये पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या इंडिया अलायंस ने आज तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा उनके एजेंडे में है? क्या अगर इंडिया अलायंस कर को दिल्ली में आती है पावर में, क्या वो हमें 370 रेस्टोर करेंगे? क्या वो जो हमारी बाकी चीजें हैं उसमें वो देंगे, या ऐसे ये मान में या ना मान में तेरा मेहरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने वो दिखावे के लिए वो अपना वहां दिल्ली के लिए वो अपना डिफेंस रखना चाहते हैं? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। अगर इंडिया अलायंस है तो क्या वो ये चीजें हमें उनके एजेंड, जैसे बाकी स्टेटों के एजेंड है, जम्मू कश्मीर का कहीं पे है? स्टेटहुड का तो कुछ नहीं, वो तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर हाउस बताया हम वो वापस कर देंगे, वो तो हो ही जाएगा। वो तो उमर अब्दुल्ला या महबूबा जी तो कुछ नहीं दे सकती ना तो वो उनके एजेंडे, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना वो बता दिया है। तो उनसे भी जरा ये पूछ लीजिए, क्या इंडिया अलायंस हमें ये चीजें रेस्टोर करेगी जो हमें 5 अगस्त को हमसे छीनी गई है? मीर साहब, अपनी पार्टी जो है अभी अलायंस या अपने यूनाइटेड मूवमेंट जम्मू कश्मीर पिछले दिनों बीसी में भी आपका साथ दिया सेंट्रल कश्मीर, आप उनको ना, क्या अपनी पार्टी ने ठान दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है कश्मीर? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या तंजीम का मसला नहीं, ये उस नैरेटिव की दास्तान है जिस नैरेटिव ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई। इन्होंने ऐसी सियासत शुरू की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग और दिल्ली के दरमियान दूरियां बढ़ाई गई। उन दूरियों की वजह से जो तबाही यहाँ हुई, हमारे बच्चों को बंदूक उठाना पड़ा, गोलियों का निशाना बनना पड़ा, जेलों की जीनत बनना पड़ा, कब्रिस्तान का रास्ता लग गया। हमने अहद किया है कि हम इस नैरेटिव के साथ नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की तरफ लाएंगे, खुशहाली की तरफ लाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सवाल नहीं, ये पीडीपी का सवाल है, ये कई और तंजीमों का सवाल है जो लोगों को बहकावे में लाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अचीवेबल का नारा जब दिया, अचीवेबल्स की बात करते, उसी में जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद है और उसी लिए हम काम करते हैं। मीर साहब, अल्ताफ साहब ने कल अनंतनाग में बयान दिया 2016 किलिंग को 2010 में जो भी किलिंग हुई है उसका हिसाब लिया जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बताया ये जो नाम मालूम बंदूक बरदारों की कहानी है, इसमें मुलव्वस है यही जमातें, यही लोकल जमातें, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें मुलव्वस है। अब आपका मुतालबा होना चाहिए, हम सब का मुतालबा होना चाहिए, इसे पर्दाफाश उठना चाहिए, जो कल्प्रिट्स है उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो सभी लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बातें करते थे और आप लोग भी हमेशा ये कहते थे कि नामालूम बंदूक बरदार को आइडेंटिफाई कीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई कर रही है। मैं समझता हूँ आज हमारा मीडिया क्यों खामोश है, ये इसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? जरा ये नामालूम बंदूक बरदारों की अगर निशानदेही की गई तो इसको जरा खुले आम कर दीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये सब आपका क्या मुख्य है 370 ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लग रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 370 जब कार्रवाई हुआ, दैट वाज रियली पावर्स विदिन। मसलन उस वक्त यहाँ पर आपका सदर रियासत जो था वो मुंतखब होता था, उसको यहाँ की असेंबली इलेक्ट करती थी। दिल्ली वालों का कोई रोल नहीं होता था, वजीर आजम भी खुद होता था, इलेक्शन कमीशन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार नहीं था। तो इसी तरह मुझे बताइए ये कब खत्म हुआ? ये कांग्रेस दौर में ही खत्म हुआ। अब वहां ढांचा रह गया,
वो ढांचा भी इन्होंने मुनहदम कर दिया। नतीजतन जो कांग्रेस और बीजेपी आर्टिकल 370 कहती है, जम्मू कश्मीर में ये एक ही सिक्के के दो रुख, इसमें कोई फर्क नहीं है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं हमारी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ हो, लेकिन सोचना है ये कैसे आ सकता है, क्या कोई रास्ता हमारे पास है? हम नौजवानों को वो रास्ता नहीं दिखाएंगे जिससे वो सिर्फ जेलों की जीनत बने। खैर ये हम सबका सेंटिमेंटल और इमोशनल इशू है, अगर हो जाता वी ऑल वुड वेलकम इट, मैं लेकिन सिचुएशन ऐड करना चाहूंगा जो इस भाई ने सवाल पूछा कि जो ये लोग मारे गए हैं उसमें वो पॉलिटिकल, मैं चाहूंगा इस लिहाज से कि मैं भी एक मिलिटेंसी विक्टिम हूँ। मैं खुद, मेरे वालिद को भी 90 में शहीद किया गया, शेख अब्दुल जब्बार जो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके थे। हम चाहते हैं कि इसमें एक कमीशन बैठे, नॉट कि 90 से, हम चाहते हैं 87 से देखा जाए। जो इलेक्शन रिगिंग, जो यहाँ मिलिटेंसी की दाग बेल जब पड़ी, जब मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनना पड़ा, हजारों सलाहुद्दीन बन गए, तो उसके पीछे क्या वजूहात थी? कौन लोग कार फरमाते जिन्होंने इस वक्त पोल रिगिंग की? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जो राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ था, जब यहाँ मिलिटेंसी ने जन्म लिया, यासीन मलिक जैसे लोगों को बंदूक उठाना पड़ा, हमीद शेख जैसे साहब को बंदूक उठाना पड़ा, और उनके जो अहलो अयाल थे उनको थानों में बंद किया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई उनकी फैमिलीज के साथ, तो वो मजबूर होके बंदूक का रास्ता उन्होंने अपनाया। तो एक पूरा फुल कमीशन बैठना चाहिए जो 1987 से यहाँ देखे मिलिटेंसी का जन्म कैसे हुआ, कौन लोग थे, और 87 के पोल्स में किन्होंने रिगिंग की, क्या मामला हुए, और जो पॉलिटिकल किलिंग्स यहाँ हुई वो किन लोगों ने की। जैसे मीर साहब ने फरमाया कि जो नामालूम बंदूक बरदार, ये पूरा इसके डिटेल, इनके पीछे गोली चलाने वाला मैं मुल्जिम नहीं समझता हूँ, वो तो बंदूक में उसने तो, जो इसके पीछे उसको मोटिवेटर है, जो उसको तैयार करता है इन चीजों को, उनकी निशानदी होनी चाहिए, उन लोगों को देखा जाना चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे उन लाखों हजारों फैमिलीज को इंसाफ मिलेगा। जो लोग आज चीख चीख के पुकार रहे कि अभी हमें इंसाफ चाहिए, मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो इस वक्त अपने इंसाफ के लिए अपनी गुहार लगाए बैठे होंगे। तो ये बात थोड़ी यहाँ चली थी, इसलिए मैंने ऐड Thank you.